Hello. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, good morning. Okay, good morning. And here we are with the 21st lecture. As you know, we are going very slow, and if the slide is not visible or voice is not audible, then please let me know immediately, okay? Because Okay. sometimes there is net problem or something, so I can go to tethering mode. So we were actually in the we are in the process of completing the rectifier part, but there is some advanced portion which PG students must learn, and that is related to the power factor improvement techniques which are used in converters. So I have included that also. Due to that, a little extension has happened here. These were the outcomes which we have been trying to achieve through the last 2 or 3 sessions. These are common outcomes. And we have completed the operation and working of 3-phase semi-converters. And it was seen that in the semi-converter, there are different zones for different values of alpha. Like the value of alpha decides whether the converter will work as a 3-pulse converter or as a 6-pulse converter. So this we had done. And this is the detailed explanation. So if you have to do any time, any numerical, any theoretical question is asked to you, okay? So this is one example of how you have to explain. This is a slide, so it's not that much in detail, but you have to write even in more detail than what is given here. And it is better to adopt a scientific approach and draw a proper table like this. Are the slides moving? Slides moving? Yes, ma'am. Okay. So you should draw a conduction table. Now, like this is the conduction table for alpha is equal to 90. Before making this conduction table, you should draw these two normal conduction of SCR1, means when will the SCR1 become forward bias, when did the SCR2 will become forward bias, like the period 0 to 60 degree or 0 to 180 degree, etc. This omega t is equal to 180. This tells you about when the SCR can be fired. So this is for alpha 0. Then you make table for alpha is equal to whatever value is given. And after writing this, you get the output voltage calculated in this particular way. And the table clearly shows that if alpha is greater than 60, meaning alpha is equal to 90 here, so if alpha is greater than 60, then there will be only 3 pulses. Okay, only 3 pulses in the output voltage, one cycle. This shows complete one cycle, okay? And in one cycle, there will be only 3 pulses. Rest of the time, the voltage will be 0 because the flywheel diode will be conducting, okay? And this is for, let us say, continuous conduction. Similarly, just if you remember 2 or 3 principles, then you can draw the waveform. It is very mathematical kind of thing. You should know कि alpha is equal to 0 कब है किसी भी device का. So naturally, if you know alpha is equal to 0 is at omega t is equal to 60. That means अगर alpha 30 है तो device कितने पे fire होगा 60 plus 30 पे. तो इस तरह से you can just make this table. And I have given you some assignment also. I will be uploading it. तो आपका क्या हुआ है कि अभी तक असाइनमेंट कम हुए हैं. क्विज तो 8 क्विज हो जाएंगे इस वीक में, बट असाइनमेंट अभी तक 5 ही हुए हैं. सो आई विल बी गिविंग यू वन मोर असाइनमेंट दिस वीक. एंड बोथ ऑफ यू हैव बीन डूइंग वेल इन असाइनमेंट्स. संजय थोड़ा बेटर कर रहा है. दीक्षा आप भी थोड़ा और ट्राई करो. आपका एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट या कुछ. आई हैव गिवन यू द रिमार्क्स. संजय आपने वो देखा है चेक करके? आपने आपका असाइनमेंट चेक हो गया? आपने देखा? मैं असाइनमेंट 4 में मैंने चेक किया है. अच्छा, वो आपने मुझे मैसेज किया था. तो ऐसे ही इसी तरह से आप मैसेज करते रहिए, क्योंकि ताकि मुझे भी पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है करके, है ना. तो मैं भूल गई थी चेक करना, तो आपने बोला तो मैंने चेक कर लिया. ठीक है.
So just see and check and tell me. I have written some comments, okay, in comment boxes. तो वो छोटा सा ऐसा आइकन बन के आता होगा, कुछ छोटा सा स्क्वायर. So just see whether the comments are visible to you or not, okay? Because when you appear for the examination, so you will be getting the questions mostly from the assignments only. And that is why it is necessary that you do the assignments seriously, take out a little time for doing the assignments. Then at the time of examination, it will be very easy for you, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, आपके पास एक रेडी मटेरियल होगा पढ़ने के लिए. दूसरी चीज ये भी है कि समझ के करिए, कोई भी चीज इसमें रट नहीं पाएंगे हम लोग. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गो फ्रॉम द बेसिक्स. उसी चीज की आदत डालिए. The class also has been taken very slowly just for the same reason that and I'm providing the notes also in the PPTs itself. डिटेल में नोट्स बनाकर ऑपरेशन वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं. इससे ज्यादा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है. ओके, so in a drive, the main principle which you must always remember is कि when the devices are on, then the voltage which is connected to the devices, the phases which is connected to the devices will appear across the output voltage. जैसे यहाँ पे T3 और D1 है, तो 3 मतलब T3 is connected to phase C, तो C आ गया VC, और D1 the return path is through A, D1 is connected in phase A. तो इस तरीके से जब फ्लाईव्हील डायोड होगा तो आपका 0 आ जाएगा. एंड व्हेन कोई भी डिवाइस वर्क नहीं कर रहा होगा, लाइक फॉर इन अ केस ऑफ अ फुल कन्वर्टर, या जब फ्लाईव्हील डायोड, एक्चुअली इन अ सेमी कन्वर्टर द फ्लाईव्हील डायोड विल कम इनटू पिक्चर, ठीक है. लेकिन द सेम थिंग व्हेन यू स्टडी फॉर द फुल कन्वर्टर, तो यू विल सी दैट no there will be a gap when the current becomes 0. तो यहाँ पे तो करंट 0 नहीं होगी, बिकॉज फ्लाईव्हील डायोड कैरी कर लेगा. लेकिन फुल कन्वर्टर में इफ देयर इज नो फ्लाईव्हील डायोड, ओके, एंड ये भी मैं पूछूंगी संजय, आप बताएं मुझे कि पहले मैं आगे पूछूंगी क्वेश्चन, लेट मी फर्स्ट मेक इट क्लियर. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसीलिए ये बार बार मैं 3 फेज सेमी कन्वर्टर भी यहाँ पे लिख रही हूँ आपको, क्योंकि सेमी कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर का डिफरेंस आपको पता लगना चाहिए. One more thing, you know that the semi-converter is a single quadrant converter. Okay. Now, moving ahead, ये सब तो waveforms वगैरह थे, है ना? So you can see that the output voltage becomes 0. Okay, here the output voltage becomes 0 because of diode, क्योंकि diode off हो गया यहाँ पे, D3 off हो गया. T3 तो अभी कंडक्ट कर सकता था, नेगेटिव में भी चला जाता, बट डायोड ऑफ हो गया, तो ये वोल्टेज आपका यहाँ पर, आपका जो फ्लाईव्हील डायोड जब चलेगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा. ठीक है. नाउ डिफरेंस, अगर इसी कंडीशन में फुल कन्वर्टर होगा तो क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो. और ये जो लिखा भी है ना, सब नोट्स जो है दे आर वेरी वेरी क्रिस्प, तो इनको आप बैठ के कभी भी घंटा भर लगेगा, बट आपको हमेशा के लिए कमांड आ जाएगा. ठीक है. और जो क्विज के क्वेश्चंस हैं वो भी इसी टाइप के हैं. तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ठीक है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं. तो अभी अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री था, तो 120 डिग्री में आप देखेंगे कि देयर आर पीरियड्स व्हेन इवन द फ्लाईव्हील डायोड इज नॉट ऑन. ठीक है. देयर आर पीरियड्स व्हेन द फ्लाईव्हील डायोड इज आल्सो नॉट गेटिंग फॉरवर्ड बायस. तो यहाँ पे 0 डिवाइस, कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही. जब कोई डिवाइस नहीं आएगी तब वोल्टेज आपका जो है वो इक्वल टू बैक ईएमएफ हो जाएगा, ई के बराबर, ई विच इज द बैक ईएमएफ इन केस ऑफ अ डीसी ड्राइव. तो यहाँ पर आपको मेन चीज जो समझनी है, you have so far studied the converters for R, L, this type of passive loads. Now you have a drive connected which is a active load. ठीक है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट भी थोड़ी देर के लिए 0 हो जा रहा है, जब ये पीरियड जो है, जब 0 डिवाइसेस कंडक्ट कर रहे हैं. तो जितनी देर ओमेगा टी इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट से लेके ओमेगा टी इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट तक, द वोल्टेज इज इक्वल टू द बैक ईएमएफ, एंड बेसिकली ओपन है, मतलब वो सर्किट ओपन है ना. मोटर की स्पीड तो 0 नहीं है, स्पीड 0 नहीं है, तो कोई ना कोई बैक ईएमएफ है, तो वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फुल कन्वर्टर. ठीक है. तो व्हेन यू डू द सेम थिंग फॉर द फुल कन्वर्टर, पहली बात तो ये कि सेमी और फुल कन्वर्टर में डिफरेंस क्या है, बताओ मुझे. एक डिफरेंस मैं खुद ही बता रही हूँ कि इसमें 6 एसटीआर हैं और उसमें सिर्फ 3 एसटीआर थे. ठीक है. अब बताइए मुझे कि और क्या डिफरेंस है, कोई और डिफरेंस है.
जल्दी से, क्योंकि अपना वेवफॉर्म भी आगे पड़े हैं पूरे इसके, है ना। ये मैं तो इसमें सब डबल एक्सप्लेनेशन क्वाड्रेंट है। हाँ ऑपरेशन बताओ बताओ, पॉसिबल है। बोलो। मैं इसमें डबल क्वाड्रेंट पॉसिबल ऑपरेशन फुल कन्वर्टर में वेरी और गुड, वेरी गुड, सिग्निफाई वेरी गुड। और डबल क्वाड्रेंट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये वाला जो कन्वर्टर है, ये 3 फेज फुल कन्वर्टर, इसमें नेगेटिव वोल्टेज आता है। पहले वाले जो सेमी कन्वर्टर में नेगेटिव आ रहा था क्या, आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था, क्योंकि या तो कोई डायोड ऑफ हो जाएगा, और अगर फ्लाईव्हील डायोड ऑन हो गया तो फ्लाईव्हील डायोड भी सिर्फ करंट को कंडक्ट करेगा, वोल्टेज को थोड़ी लेके जाएगा। तो अगर फ्लाईव्हील डायोड आया तो करंट विल कीप फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन अ सेमी कन्वर्टर, करंट विल become continuous, but inversion is not possible. The voltage will not become negative, क्योंकि यहां से नेगेटिव फेज इधर आ ही नहीं रहा है। इन्वर्शन तभी होगा जब ये वाला पॉइंट नेगेटिव होगा, मतलब आपका V0 नेगेटिव होगा। और V0 कैसे नेगेटिव होगा, आपने ये पढ़ लिया है, ये सब तो मैं पूरा पूरा बार बार नहीं जाऊंगी। लेकिन आज जो मैंने आपको असाइनमेंट अपलोड करूंगी मैं, वो थोड़ा सा बड़ा है पहली बार, क्योंकि आपके ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आपको नहीं दे पा रहे थे, छोटे छोटे। तो उसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो आपको खुद लिखना है। छोटा छोटा है, स्लाइड पे तो ज्यादा मटेरियल होता ही नहीं है। तो इस बार आपके 8 क्वेश्चंस हैं, और 2 दिन का आपको ग्रेस पीरियड भी रहेगा। आज की तारीख से मैंने पता नहीं ट्यूसडे तक दिया है या अगले ट्यूसडे तक या कुछ, मतलब 7-8 दिन का टाइम है, और आप चलिए 10 दिन में कर दीजिएगा, उसके बाद मत करिएगा। तो द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर आल्सो देयर फॉर यू दिस टाइम, ओके। क्लास है ना, देखो, या शर्मा जी को। So what I was trying to tell you is that तो वी वर डिस्कसिंग कि इसमें निगेटिव पार्ट क्यों की आता है, और क्यों आता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जैसे T1 ने कंडक्ट करना चालू किया, तो वो कंडक्ट करता रहता है, T1 कंडक्ट करता रहता है, जब फॉरवर्ड बायस नहीं भी है तब भी कंडक्ट करता रहता है, जब तक उसमें करंट है। अगर उस दौरान ये वोल्टेज निगेटिव हो गया तो नेगेटिव वोल्टेज भी लोड के अक्रॉस आ जाता है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ये कंडक्ट कर रहा है, तो अगर ये दूसरी डिवाइस ऑन नहीं होगी, या फायरिंग एंगल कितना है, तो ये निगेटिव प्रोपोर्शन पे भी चला आएगा ये पूरा, है ना। यहाँ देखिए, आप अगले अगले स्लाइड में देखिए, ठीक है, यहाँ तो नेगेटिव नहीं हुआ, बट लुक एट दिस, so the voltage can become negative also, okay, voltage can become negative also, that is the thing. Same device T1 is conducting, the firing angle आप देखिए कितना है, यहाँ से T1 का अल्फा अपन ने मेजर किया इस जगह से, और अल्फा कितना ज्यादा है देखिए। अल्फा हम हमेशा T1 का ही शो करते हैं, बाकी सबका ऑटोमेटिकली निकलता जाता है। तो ऑल दीज वेव फॉर्म्स मैंने आप लोगों को अल्फा इज इक्वल टू कुछ 60 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू कुछ 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा कुछ दिया है। तो ये आपको 3 फेज के वेव फॉर्म्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, इसको लाइटली नहीं लेना, और ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लेना है ना। ये जो वेव फॉर्म्स मैंने जिन किताबों से बनाए हैं, वो बुक्स का भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कट करके वो भी आपको असाइनमेंट के साथ भेज दूंगी, सो दैट ये अगर इसमें कुछ क्लैरिटी कम होगी मान लीजिए, तो बुक वाले में और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ये 4 मोड्स होते हैं, आपको मालूम है, देयर आर 4 मोड्स ऑफ ए फुल कन्वर्टर। मोटरिंग के 2 हैं, मोड 1 एंड मोड 2, दे आर फॉर मोटरिंग। ये यहाँ तक मोड 1 मोटरिंग, मोड 1 मोड 2 रीजनरेटिंग, मोड 3 मोड 4, ठीक है। तो इन दिस वे, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आ गया ना, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि मोटरिंग में भी आपका अल्फा कितना है, यहाँ पे करंट कब कब से कब तक फ्लो हो रही है, यहाँ ये ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 तो इसका रेफरेंस पॉइंट ही है, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 पे एसटीआर फॉरवर्ड बायस होता है। तो कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, 60 प्लस अल्फा से। और करंट भी कब से फ्लो होगी, करंट विल फ्लो फ्रॉम ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 प्लस अल्फा, बिकॉज एट 60 प्लस अल्फा द डिवाइस T1 will start triggering. This point is your omega t is equal to 0 point is here, okay. So where is the cursor and all that, sometimes it is not visible to me, okay, anyway I hope this is, तो यहाँ से आपने मेजर करना स्टार्ट किया, ओके, यहाँ से, और ये आपका अल्फा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हैं कि T1 ने कंडक्ट करना, ऊपर भी देख सकते हैं, T1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया। नाउ T1 अगर इसके साथ डायोड होता तो ये इस जगह पे डायोड ऑफ हो गया होता, तो ये नेगेटिव आता ही नहीं। That means in a semi-converter, there is no chance of negative voltage appearing across the load. यहाँ पे अगर अल्फा आपने और बढ़ा दिया तो नेगेटिव ही ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि अल्फा इज इक्वल टू 90 पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर रहेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 जब होगा तो लोड वोल्टेज V0 विल भी कितना होगा? V0 बताओ, ये 3 फेज फुल कन्वर्टर में, ठीक है, अगर अल्फा 90 है तो लोड वोल्टेज कितना होगा? V0 कितना होगा? सामने ही आपके फॉर्मूला भी है। 0 होगा। जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। 0 जीरो जीरो होगा। जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि अभी जब 90 से कम है अल्फा, जब अल्फा 90 से कम है तब पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव बहुत कम है ना। अगर अल्फा और थोड़ा कम होता, जैसे 30 डिग्री होता, तो पॉजिटिव काफी ज्यादा होता, और नेगेटिव कब तक आ रहा है यहाँ? जब तक कि अगली डिवाइस ऑन नहीं हो रही है। यही यही पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ओके, दिस इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि ये कब तक ये वोल्टेज आएगा। यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ तक ही आ रहा है सिर्फ। जो मैं दिखा रही हूँ आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पेन नहीं आ रहा आज, नहीं तो मैंने एनोटेशन, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? यस मैम। दिख रहा है। तो आप देखिए ये जो डिवाइस T1 है ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करी है, क्यों आगे तक नहीं करी? क्योंकि करंट जीरो हो गई। ठीक है, देख रहे हो यस ना उसके मैम। नीचे ये करंट जीरो हो गई। ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है, मोड 2 है, करंट जीरो हो गई तो ये यहीं पे जाके बंद हो गया। अब अभी आपका अगला डिवाइस ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि अगले को यहाँ से अल्फा के बात करेंगे ना, यहाँ से उसके लिए अल्फा स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ जाके होना था। ठीक है, T2 के लिए जब T2 कंडक्ट करेगा तो तब आपका, तो लेकिन क्या हुआ कि करंट यहाँ जीरो हो गई। करंट जीरो हो गई तो वोल्टेज भी आपका इस जगह पे बैक ईएमएफ के बराबर हो गया, क्योंकि इस जगह पे कोई डिवाइस वर्क नहीं कर रही, वोल्टेज जीरो नहीं होगा, इट विल बी इक्वल टू बैक ईएमएफ। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला, फिर ये एक साइकिल, एक भी अगर आप समझ लो तो अगला तो अपने आप ही कंटिन्यू करता है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे कि T1 दो टुकड़ों में काम कर रहा है, बीच में वो ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि T1 और T6 मिलके ये करंट को फ्लो कर रहे थे। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक T1 T6 कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, और अगर अपन इसमें देखेंगे करंट कहां से कहां तक फ्लो हो रही है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 प्लस अल्फा, विच इज दिस पॉइंट, दिस इज 60, दिस इज अल्फा, तो दिस इज 60 प्लस अल्फा। ओके, दिस इज 60 प्लस अल्फा। तो 60 प्लस अल्फा से कब तक कंडक्ट कर रही है वो? बीटा तक। ये सब यहाँ से मेजर हो रहे हैं। VAB जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये बीटा कहाँ से कहाँ तक है? ये इतना है बीटा। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो बीटा ऑलमोस्ट 180 से थोड़ा ज्यादा है, 10 डिग्री या 15 डिग्री, ये बीटा। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम 60 प्लस अल्फा टू ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा। अब करंट जीरो कहां से कहां तक रहेगी? ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा पे करंट जीरो हो गई, और अगली करंट कब स्टार्ट होगी? ये अगली करंट स्टार्ट होगी ओमेगा टी इज इक्वल टू 120 प्लस अल्फा, क्योंकि 120 प्लस अल्फा पे आपका अगला डिवाइस जो है वो ऑन हो जाएगा। और इस तरीके से आपका यहाँ से अब आपने मेजर कर लिया इसको, और ये इस जगह से यहाँ अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि T2 आपका इसके बाद यहाँ से ऑन होगा, T2 यहाँ पे ट्रिगर, T1 यहाँ पे ट्रिगर होगा, T2 यहाँ पे ट्रिगर होगा। इट इज वेरी सरप्राइजिंग व्हाई द, हाँ अब आ रहा है शायद, ये बहुत फीका है। ओके ओके, पेन। सो T1 यहाँ पे ट्रिगर होगा, ये बहुत बार बता भी चुकी हूँ मैं, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है इसीलिए बार बार बता रही हूँ। T2 यहाँ से ट्रिगर होगा, है ना, T2, और ये पूरे इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज T3, दिस इज T4, ओके, दिस इज T5, एंड ये वाला पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज T6।
ठीक है, क्लियर? तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लोगे तो फिर आपको तो करंट कब से कब तक फ्लो हो रही है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ आ सकता है, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन तो सिंपल, इसलिए वोल्टेज इक्वेशन भी आपने कैसे निकाली, अल्फा प्लस 30 से लेके Vm sin ओमेगा टी, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज Vm sin ओमेगा टी, यहाँ से यहाँ तक Vm sin ओमेगा टी को आपने यहां से, ये पॉइंट क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा, क्लियर, दिस इज अल्फा। तो आपने 60 प्लस अल्फा से लेकर कब तक उसको किया, लेकिन ये मोड 1 और मोड 3 के लिए है, ये अपन मोड 2 की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, समझ गए ना। तो ये मोड 1 का, ये इस वाले, ये जो डायग्राम यहाँ जो बना हुआ है उसका इक्वेशन ये नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन पुराना है, मोड 1 का है। तो मोड 1 में जो आपका वोल्टेज है वो कहां से कहां तक, या इसमें भी कहां से कहां तक जा रहा है, मोड 1 में 3 में अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 तक जा रहा है। यहाँ नहीं जा रहा है वोल्टेज 2 पाई बाई 3 तक, यहाँ नहीं जा रहा है, ये पुराने वाले का है। यहाँ पे आपका वोल्टेज 60 प्लस अल्फा से लेकर बीटा तक जा रहा है, मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, बीटा। अगर ये वाला निकालना होगा तो जो सेकेंड लिमिट होगी अल्फा प्लस पाई बाई 3 से बीटा तक आप इंटीग्रेट करेंगे Vm sin ओमेगा टी को, अगली स्लाइड में दिखेगा, ठीक है। ये वाली मोड 1 की है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज मोड 1 एंड दिस इज मोड 3 में भी सेम इक्वेशन रहेगा, लेकिन मोड 3 में सेम इक्वेशन रहेगा बट E विल बी नेगेटिव, K विल बी नेगेटिव, क्योंकि अपन लोग कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 में चले जाएंगे जब हम मोड 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे, सो ये पिछली बार भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बट आपकी बार क्विज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप क्लियरली समझेंगे कि क्या दिया है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उससे देखेंगे तो बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स जैसा है ये। प्रत्येक डिवाइस 60-60 पे ऑन होती है, ठीक है। दिस वाज मोड 3, तो मोड 3 का भी वही इक्वेशन रहेगा। अब ये आपका मोड 4, देखिए यहाँ पे बीटा पे किया हमने इंटीग्रेट, है ना। ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड 2 है, मोड 2 का डायग्राम वहां चला गया है, मोड 2 का ये यहाँ आ गया। अच्छा, इधर गलती हो गई थी, अब क्या होगा, बीटा से लेकर, पिछली स्लाइड में बीटा से लेकर जब तक अगला डिवाइस ऑन नहीं होता तब तक आपका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, E के बराबर था ना, पिछले डायग्राम में था ना, E के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे बीटा से E तक आपने K ओमेगा M डी ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया है। ये मैं पिछली बार बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। यहाँ इस डायग्राम में यहाँ पे टी ए है, थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा था वो। तो ये इक्वेशंस आप देख लीजिएगा, ये इसी से आ जाएंगे, क्योंकि अपन लोगों ने पीछे सिंगल फेज कन्वर्टर के लिए हमने ओमेगा के सब डिराइव किए हुए हैं, तो इसका डेरिवेशन आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर अगर कोई प्रॉब्लम कोई, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करना हुआ, कुछ करना हुआ, तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है। आपने देखा था कंडक्शन, कंटिन्यूअस कंडक्शन में, है ना, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन आ गया था, 3Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिया तो आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो यू मे बी आस्क्ड टू डू अ प्रॉब्लम समथिंग, है ना, इससे रिलेटेड कोई एक छोटा सा अगर प्रॉब्लम आया कि जिसमें आपको अल्फा दिया है, बीटा दिया है ना, तो आप अल्फा बीटा अगर दिया है, के दिया हुआ है ना, तो इन दैट केस, एंड अगर मोटर की स्पीड कितना लोड है, क्या है, उसके हिसाब से आपको स्पीड निकलेगी। तो यू कैन फाइंड द वोल्टेज। अगर आपसे पूछेंगे, या अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो मोटर किस स्पीड पे रन करेगी, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ उनको, क्योंकि कि आपके लिए सूटेबल कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल्स तो एक क्लास में हम वो भी करेंगे, बट आप इसको समझ लीजिए कि कितने मोड हैं, कौन सा इक्वेशन कहाँ लगेगा, क्योंकि अभी पीजी लेवल पे है, तो आपको बीई की किताबें अगर पढ़ोगे कन्वर्टर की, तो उसमें आरएल लोड लिखा रहेगा, या आरएल ई भी लिखा होगा, तो ई विल बी अ बैटरी, जबकि यहाँ पर ई इज अ ड्राइव, मतलब जिंदा ड्राइव है, एक्टिव लोड है, ओके। तो दैट इज वाई ये आपको ज्यादा डिटेल में कराया जा रहा है, ठीक है। ये ओमेगा एम का इक्वेशन आप इजीली डिराइव कर सकते हो, जो बेसिक इक्वेशंस हैं स्पीड के, टॉर्क के, उसके बेसिस पे
ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड के लिए है, ठीक है। और कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए पिछली स्लाइड पे बताया था ये वाला है ना। तो ये इक्वेशंस बस याद कर लेना, ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दिस। तो अब इनमें क्या होता है कि या तो वोल्टेज दिया रहता है और स्पीड निकालनी रहती है, या स्पीड दी हुई है कि द मोटर इज रनिंग एट दिस स्पीड, ओके, सो व्हाट शुड बी द फायरिंग एंगल, या फायरिंग एंगल इज दिस, सो व्हाट शुड बी द स्पीड। तो फायरिंग एंगल दिया है तो आपको VA निकल आएगा, ठीक है। और फायरिंग एंगल दिया है तो, और लोड दिया है तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड, टॉर्क, ओके, एंड फायरिंग एंगल, ये तीन चीजें मेनली इसमें आपको निकालनी है। मतलब ये आपस में इनकी रिलेशनशिप है। ओमेगा एम मतलब मोटर स्पीड, टॉर्क उसको T बोलो, TA बोलो, कुछ TM बोलो, कुछ भी बोलो, दिस इज लोड टॉर्क। And in steady state, we assume that the load torque is equal to the motor torque, and alpha, firing angle, because it is a controlled drive. So these three parameters पर ही numericals होंगे, कुछ दिया होगा तीनों में से और कुछ चीजें आपको निकालनी होगी। अब TA जो है वो आपके लोड से भी रिलेटेड रहेगा। TA is a function of your armature current, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड इज रिलेटेड टू योर बैक EMF E, है ना, वो आपको मालूम है K से। अगर K दिया है और स्पीड दी है, या K दिया है और बैक EMF आपने निकाल लिया, तो आप इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K दिया है एंड स्पीड दी हुई है तो E निकाल सकते हैं। अगर E हमें मालूम है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है, E हमें मालूम है और K दिया हुआ है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही K टॉर्क इक्वेशन में भी आ जाता है। तो ये फॉर्मूले जो चार, कुछ ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बट ये आप लोग ठीक से लिख के इनको याद करिए अच्छे से, ये आपको याद रहने चाहिए। और 3 फेज ड्राइव में ये दो फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। ये जो है मोड 1 एंड मोड 3 के लिए, मोड 1 इज मोटरिंग, मोड 3 इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ओके, बट बोथ आर कंटिन्यूअस करंट। इनमें समानता क्या है कि ये पूरे फॉर्मूले कंटिन्यूअस कंडक्शन के हैं, कंटिन्यूअस करंट कंडक्शन, ओके। अब मैंने एक्चुअली टैबलेट भी ले लिया है लिखने के लिए, लेकिन अभी उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, मीटिंग्स है। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन, एंड दिस वन इज फॉर, these equations are for discontinuous current, because your this is regenerative mode 2 and mode 4, दोनों में ये वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, बट दे विल बी फॉर, और रिजनरेशन में फर्क क्या पड़ेगा, बस ये आप देखिए E नेगेटिव हो गया है ना, E becomes negative, this you have to remember, and current becomes discontinuous। तो चार चीजें हैं बेसिकली, एक है मोटरिंग मोड, दूसरा है जनरेटिंग मोड, और प्रत्येक में मोटरिंग में भी कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, और ब्रेकिंग में भी, रिजनरेटिव ब्रेकिंग में भी एक मोटरिंग है, एक ब्रेकिंग है। तो चार तरह के मोड्स हैं, चार तरह के डायग्राम्स हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझ के बनाइए। जहां भी करंट जीरो हो रही है वो उसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, तो वी विल नॉट वेस्ट too much of time in this particular, on these particular slides, and we will move ahead। इसको फिर से रिवाइज करेंगे अगर कभी क्विज के टाइम पे या न्यूमेरिकल के टाइम पर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। नाउ डेरिवेशन ऑफ जैसे स्पीड और वो तो आपने देख ही लिया है। अब क्या होता है डीसी ड्राइव की, वो मुझे आपको पढ़ाना भी है। देयर आर सम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ डीसी ड्राइव, ओके, देयर आर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स मींस, अगर आपको डीसी ड्राइव, आपको कुछ तो मैंने थोड़ा सा तो पहले बताया भी था, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, IM, IRMS, IA। अब आप बोलेंगे कि डीसी है तो RMS क्यों है, लेकिन दीज आर ऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ अ डीसी ड्राइव, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में क्या होता है, एवरेज, RMS एंड पीक, ये तीनों वैल्यूज हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये किसी दूसरी किताब के डेरिवेशंस हैं, तो यहाँ VML लिख दिया है। अब योर PG स्टूडेंट्स डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, VML इज नथिंग बट आवर VM। बस ये है कि वो VM लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज है। अगर वो हाफ वेव कन्वर्टर है तो फेज वोल्टेज होगा,
फुल वेव कन्वर्टर है तो 3 फेज फुल वेव, तो ये लाइन वोल्टेज होगा। ये बस आपको याद रखना है कि Vm की वैल्यू क्या रखना है। आप वेव फॉर्म बना रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि कौन सा वोल्टेज है। आप VA बना रहे हैं, VA, VB, VC या VAB, VBC, VCA, these are line voltages, ठीक है। So you have the maximum value of line voltage is given to you, ठीक है। तो अब नॉर्मली VAB will be what? VM sin omega t, क्योंकि VAB is equal to 0 है, VM omega t is equal to 0 पे, मतलब रेफरेंस वोल्टेज VAB है, तो इसीलिए VAB will be VM sin omega t, ठीक है। VBC जो है वो उससे 120 डिग्री आगे होगा तो ओमेगा t प्लस 120 हो जाएगा। VCA में ये तो आपको मालूम है, ठीक है। अब we want to find out the average value of the voltage, ये जो V0 है ये क्या है? This is the average value, average voltage। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये आपने अभी अभी निकाला ही है, 3Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा, है ना, ये अभी किया था, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 60 प्लस अल्फा टू 120 प्लस अल्फा, बिकॉज ये डिवाइस जो है ये लेकिन अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होगा तो क्या होगा? ये यहाँ इंटीग्रेशन, ये यहाँ इसकी जगह क्या आएगा? ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है, ओके, दिस इज कंटिन्यूअस कंडक्शन। यहाँ ऊपर मुझे लिखना चाहिए, अदरवाइज ये गलत है स्लाइड। दिस इज कंटिन्यूअस कंडक्शन ऑफ करंट, ओके। यहाँ पे आई शुड राइट एट दिस प्लेस कि दिस इज फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन, ये मुझे लिखना चाहिए। देखिए टाइम अभी 10 मिनट 9 मिनट बचे हैं। आई विल ट्राई टू एक्सटेंड इट, ओके। तो आप लोग वहीं रहना, ये कई बार खुद ही वही मीटिंग उसी आईडी से एक्सटेंड हो जाती है अगर होस्ट करता है, तो आप वहीं रहना, नहीं तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी कि क्लास क्लोज हो गई, ठीक है। सो यू सी, अगर व्हाट्सएप नहीं आता है तो आप बने रहना वहीं पे, ऑनलाइन ही बने रहना। तो यहाँ पे आई शुड एक्चुअली राइट कंटिन्यूअस कंडक्शन ऑल्सो, नहीं तो ये गलत है। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो संजय ये क्या आएगा यहाँ पे इस जगह पे? फिर अभी बताया पिछली स्लाइड पे, है ना। अगर ये मान लीजिए कंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं होता, ये तो अपन कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन ने लिख लिया, बट अगर ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होता तो इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज फ्रॉम 60 प्लस अल्फा टू कहां तक होता? वोल्टेज कब, मतलब यहाँ पे कब तक इंटीग्रेट करोगे, कब तक वोल्टेज अवेलेबल है? बोलो बोलो, दोनों लोग बोलो। मैम बीटा, मैम बीटा, तो बीटा। वेरी गुड वेरी गुड। डरो नहीं, अगर गलत भी होगा तो कोई आपको मारेगा थोड़ी, म्यूट वैसे था भी वो अपन एक्चुअली। ऑनलाइन है। तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और आपने देख ही लिया कि अगर बीटा की लिमिट रखेंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस, ठीक है। अब जो मैं यहाँ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, ये ओके, तो ये होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एवरेज से अपन टॉर्क निकालते हैं, आरएमएस से करंट से, मतलब आरएमएस करंट से अपन हीट निकालते हैं, और मैक्सिमम करंट से हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ड्राइव में कितनी करंट मैक्सिमम हो सकती है। तो डीसी मोटर की कम्यूटेशन कैपेबिलिटी, या कोई भी सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगे हैं या कुछ भी है, तो उसकी रेटिंग हमेशा पीक से रहेगी। तो इस तरह 3 वैल्यूज हो गई, आरएमएस, एवरेज एंड पीक, ओके। तो अपने को वोल्टेज भी हमने VOR कह रहे हैं, तो कुछ भी VR भी बोल सकते हैं, VRMS भी बोल सकते हैं। पीजी में हो तो इसके सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना। तो दिस इज द आरएमएस वोल्टेज। हाउ डू यू फाइंड आरएमएस? एवरेज आपको मालूम है, ठीक है। तो रूट मीन एंड स्क्वायर, तो रूट कौन सा हो गया? आपने अंडर रूट ले लिया पूरे का, इस पूरे ब्रैकेट का अंडर रूट ले लिया, तो वो हो गया रूट, ठीक है। अब मीन कैसे ले लिया? 3 टुकड़े आ रहे हैं इसके Vm sin ओमेगा t के, भले वो 120 डिग्री अपार्ट हो पर है तो वही ना। तो ये 3 टुकड़े आ रहे हैं कितने में? हाफ साइकिल में, 180 डिग्री में, इसलिए 3/पाई आपने किया, तो ये आपका मीन हो गया। और आपने सभी को स्क्वायर कर दिया, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, तो ये हो गया स्क्वायर। तो ये कुछ भी कठिन नहीं है, यू कैन योरसेल्फ वेरी इजीली कैलकुलेट, मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप मैथमेटिक्स आप लोग को आती है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है,
और लिमिट्स, अब लिमिट्स की बात करें, रूट मीन एंड स्क्वायर तो हो ही गया। अब बात आती है लिमिट्स की, तो यू आर कैलकुलेटिंग द लिमिट अगेन बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस कंडक्शन, तो आपने 60 डिग्री तो हमेशा रहेगा ही ना इसमें 3 फेज में, क्योंकि T1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है π/3 पे। T1 is getting forward biased at π/3, मतलब बेसिकली एट ओमेगा t is equal to 60 डिग्री या π/3, अल्फा इज 0। अल्फा काउंट कहां से हो रहा है? π/3 से। तो मतलब ये कब कंडक्ट करना चालू करेगा? π/3 प्लस अल्फा से। और कहां तक करेगा? 120 प्लस अल्फा तक, तो 2 π/3 अल्फा। लेकिन वही बात है कि ये कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए है, कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन। डिसकंटिन्यूअस में ये फिर क्या हो जाएगा? ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका वोल्टेज जो Vm sin ओमेगा t जो है कब कब तक है? सिर्फ बीटा तक है। बीटा पे जाके क्या हो जा रहा है? वोल्टेज जीरो हो जाएगा। फ्लाईव्हील डायोड वोल्टेज नेगेटिव तो नहीं कर सकता ना, डायोड है। जहां भी डायोड आया, जब भी सर्किट में डायोड है, तो इसका मतलब पोलैरिटी सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। इसको रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डिराइव करना सीख जाइए इस वोल्टेज को, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस पे क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसलिए मैंने आपको ये दिया। अब हमें करंट में भी वही करना पड़ेगा ना, कि करंट भी आरएमएस करंट भी निकालनी है। तो अगर एवरेज करंट I0 है और हम ऐसा मानते हैं कि करंट का जो वेवफॉर्म है वो अपन फिक्स्ड ले लेते हैं ऐसे, जैसे दीक्षा ने बनाया था असाइनमेंट में, ये IA, तो अपन लोग क्या कर, जबकि करंट एक्चुअली में ऐसी है, वेवफॉर्म जब भी बनाओगे, दोनों बच्चे याद रखो, तो वेवफॉर्म में ऐसे ही बनानी है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी। बट एक्चुअली हम उस रिपल्ड करंट जो है उसकी हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं और उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अंडर ग्रेजुएट की कई किताबों में उन्होंने स्ट्रेट लाइन ही शो करी है, लेकिन आप जब बनाओगे तो आपको ये di/dt यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, कहां तक, ये पॉइंट कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, और कब से करंट घटना चालू होगी, ठीक है। तो आपको अभी जो असाइनमेंट दिया है उसमें ऐसे इस तरह से हाथ से पूरे बनाने हैं आपको, और ये असाइनमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये वाले में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट अपनी आप खत्म हो रही है, ठीक है। और सब कुछ हम लोग इस साल जो भी असाइनमेंट्स में आएगा, जो भी क्विज में आएगा, मिड सेमेस्टर जो भी इवैल्यूएशन होगा, वो सब क्विज से होगा। लेकिन क्विज में भी अपन लोगों ने 60-70 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक क्विज मैं आपको बीच में दूंगी जो पूरे का रिवीजन रहेगा, क्योंकि आप लोग कई कॉन्सेप्ट हो सकता है भूल गए होंगे। तो अभी तो मैंने क्विज 8 बना लिया है छोटा सा, लेकिन मैं बीच में कभी आपका एक रिवीजन क्विज भी लूंगी, जिसमें अभी तक जितने भी है और रैंडमली उसमें से कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि रेक्टिफायर थोड़ा टफ टॉपिक है। इसलिए ज्यादा टफ है क्योंकि आपने खुद ही उसका क्लासिफिकेशन ड्रॉ किया है। यू नो दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, तो अभी हम लोग भी उसको देख के कंफ्यूज होते रहते हैं बीच बीच में। तो बट ये है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ी देर ध्यान से पढ़ो तो याद आ जाता है। तो आई वांट यू आल्सो, तुम लोगों में से भी कोई हो सकता है कभी कहीं टीचिंग करे, या कभी जो भी काम हम कर रहे हैं, कुछ नहीं करोगे तो कम से कम इसमें अच्छे नंबर तो लाने हैं ना सब्जेक्ट में। कहीं पे भी आप जाओ कुछ करो तो आपको एक एग्जाम तो देना ही है, तो आप इसको समझ के करिएगा, ठीक है। तो अब ये I0 ये वाली करंट है, ठीक है। रिपल करंट को जब अपन लोग, मतलब ये रिपल करंट है, ऐसी करंट कंटिन्यूअस होगी तो जीरो होगी नहीं, ऐसे ऐसे चल रही है। इसका जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको अपन ऐसे I0 करके ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो इफ द इफेक्टिव वैल्यू, अच्छा डीसी एवरेज वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। So if I0 is the effective value, then the RMS value of the current is IS. This is the RMS value. RMS current will be equal to वही रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रूट, RMS is रूट मीन कैसे निकाला अपन ने, पहले स्क्वायर समझ लो, रूट हो गया, स्क्वायर समझ लो, I0 स्क्वायर कर दिया, I0 का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हो गया। अब मीन कैसे निकाला आपने, तो 1/पाई, क्योंकि पाई ड्यूरेशन के लिए है, और करंट कितनी देर नॉर्मली फ्लो कर रही है, अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन है 2π/3 डिग्री के लिए करंट फ्लो करेगी ना 120 डिग्री तक। ये एक करंट जो फ्लो करेगी वो 120 डिग्री तक करेगी, ठीक है, 2π/3। तो देयरफॉर
व्हेन यू टेक द पाई वैल्यू, एक साइकिल में 2π/3 करंट का रहेगा ड्यूरेशन, दैट इज वाई दिस इज द मीन वैल्यू। इस तरह रूट मीन स्क्वायर करके ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली करंट थ्रू द थायरिस्टर्स भी आ जाएगा। बस जब हम थायरिस्टर्स की बात करेंगे तो थायरिस्टर करंट में यहाँ पे आपका पूरा 2π आ जाएगा 1π की जगह। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूट, मतलब करंट की वैल्यूज वगैरह हम कैसे निकालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब मैम मैं आपको इसमें हाँ बताओ। मैम इसमें हमने IRMS निकाला मैम, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अगर पूछा जाएगा तो मैम इसमें RMS वैल्यू सोर्स करंट भी निकालना पड़ेगा। ये सोर्स करंट नहीं है ये वाला, हाँ ये RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स करंट। हाँ मैं ना आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगी, एक स्लाइड बनाऊंगी एक दिन। वो एक्चुअली सबसे पहले पढ़ाना था मुझे डीसी ड्राइव के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा भी है, और वो मैं आपको मुझे पढ़ाना है वो, तो वो रह गया है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है। लिस्टिंग दे देगी, आपको लिस्टिंग दे दूंगी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 5 मिनट में वो कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो और इसीलिए असाइनमेंट्स में आपके चेक करके आपको कमेंट्स भी दे रही हूँ, जो गलती है सब कुछ जो आना होगा वो असाइनमेंट में से ही आएगा। अभी अपने पास क्या है, वी कैन गो स्लो एंड स्टडी बिकॉज द क्लासेस आर, अब 1 ही मिनट रह गया, बंद होगा तो मैं एक्सटेंड करूंगी इसको। ठीक है, इसी इसी उसको नई लिंक नहीं भेजूंगी, इसी को एक्सटेंड करूंगी। तो अब जो असाइनमेंट्स है वो बाद में हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि क्लासेस अपनी 28 नवंबर तक है इसका, है ना। तो आप लोगों के तो 2 ही कोर्सेज हैं,